Hello student, welcome you back in this physics video. In today's video, we will learn with the help of electrostatics about of this magnetism. So little bit changes that we are going to put in this electrostatic, and thus we are able to manage the terms which is related to magnetism. So let us to start. In electrostatics, we said that there are two charges. One it is a positive charge, while the second it is negative charge. While in magnetism we are saying that a magnet is having the two pole. One it is said to be north pole, while the second it is going to be south pole. Okay, now in electrostatics we said that if two equal and opposite poles they are placed together and are separated to each other by a small gap, so that is given the name of dipole. These were said to be electric dipole, and this length it was known as double of L, and the charge that we have taken it is equal and opposite. Okay, and now over here that in case of magnet, that we are having the two poles of a magnet, they are separated to each other by a small gap that was named as dipole length. This is the dipole length, and we are having that this is named as magnetic dipole. This is magnetic dipole, and 2L is over here, that it is magnetic dipole length. While in this side this 2L, it was this electric dipole length. Now how do we find out the strength of a dipole? So strength of a dipole, it is given by that dipole moment, and dipole moment is given by, and this is electric dipole moment, and which was equal to either charge into that uh, electric dipole length. Okay, so it was 2L, or either it is Q into 2L. Okay, this was that we are having electric dipole moment. Okay, and that unit if we talk about there, it was ampere meter. Okay, so that unit were ampere meter. While if we talk about over here that of how do we find out the strength of this magnetic dipole, then we are using over here, this is magnetic dipole moment, and which is given by that of the strength of either pole, because north and south they are two equal and opposite pole. ठीक है, तो जिनकी स्ट्रेंथ क्या है, एक बराबर, लेकिन पोलैरिटी दोनों की क्या है, अपोजिट है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास दैट स्ट्रेंथ ऑफ ईदर पोल इनटू दैट डायपोल लेंथ. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये डायपोल लेंथ होगा. ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ दिस नॉर्थ पोल, इट इज़ टेकन एज QM1. ठीक है, और जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ दिस सेकेंड पोल, इट इज़ गिवन द नेम ऑफ QM2. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो स्ट्रेंथ है दोनों पोल्स की, वो आपस में क्या है, इक्वल है. ठीक है, ओनली क्या डिफरेंस है, पोलैरिटी, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ है. और वैसे ही यहाँ पर था हमारे पास स्ट्रेंथ तो दोनों की एक बराबर थी, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज होता था, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता था. ओके, सो दस वी गेट ओवर हेयर ईदर दैट पोल स्ट्रेंथ, तो दिस इज QM. ठीक है, इनटू दैट ऑफ डायपोल लेंथ, इट इज़ 2L, एंड दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M. वट रिमेंबर ओवर देयर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को एक और फार्मूले से हमने फाइंड आउट किया गया था, दैट वाज आल्सो कैलकुलेटेड. सो देयर वी सेड दैट इट इज़ करंट इनटू एरिया. ठीक है, तो जो इसकी यूनिट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, वो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, दिस इज करंट को एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर. सो दीज वर द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, so it is strength of either pole into dipole length. Now see over there that
P is the symbol used and here M is the symbol used. Okay. Now if we talk about over there, that what will be the direction of this electric dipole moment. So this was from negative to positive. This was the direction. Okay. Now similarly over here, if we talk about that of this magnetic dipole moment. So what will be the direction of this magnetic dipole moment? It is from that south to north. This is the direction of magnetic dipole moment. Okay. Now if we draw the electric field line of dipole, electric field line of dipole. ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती थी? ऐसी लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं, ठीक है। तो दिस लाइन्स वर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। सो एक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे शो होती थी? सो देयर वी सेड दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की, वो क्या होती है? आउटवर्ड शो की जाती है इस तरह से, ठीक है। ये क्या होती थी? लाइंस थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती थी। और नेगेटिव के लिए कैसे शो करते थे हम? ये जो हमारे पास लाइंस हैं उस पे जो एरो है वो इनवर्ड हो जाते थे, ठीक है। तो ये सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव की बात हो रही थी, ठीक है। फॉर क्यू ग्रेटर देन जीरो एंड इट वाज क्यू लेस देन जीरो। लेकिन जब आप इनको डाइपोल बनाते हो तो उस वक्त हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहाँ पर वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती थी नेगेटिव की तरफ। तो इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये क्या होती थी यहाँ पर? पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और ख़त्म हो जाती थी नेगेटिव के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया था? डिसकंटिन्यूस बोला गया था, ठीक है। तो ये कैसी थी हमारे पास? डिसकंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, ठीक है। डिसकंटिन्यूस का मतलब हो गया था जो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव पर ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव से बाहर की तरफ शो होती थी और जो हमारे पास नेगेटिव में ये क्या हो जाती थी? इनवर्ड डायरेक्शन में एंटर होती थी। सो दिस वाज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ सिमिलरली ओवर हेयर इफ वी टॉक अबाउट ऑफ दिस दैट ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट के अंदर हमारे पास ये जो नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ऑफ मैग्नेटिक डायपोल की शो कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे शो की जाएगी हमारे पास? सो फॉर दिस पर्पज़ जस्ट टू सी दिस वन, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। तो इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हम एक कंपास की हेल्प से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपास के अंदर क्या होती है? एक मैग्नेटिक नीडल। जैसे ही आप कंपास को इस एंड के ऊपर रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है? जो कंपास का नॉर्थ पोल है वो दूर की तरफ चला जाता है और साउथ इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। फिर यहाँ पर हमने मार्क कर लिया इसकी पोजीशन को। उससे नेक्स्ट जब हम दोबारा से उस मैग्नेट जो कंपास है उसको प्लेस करेंगे तो ये इस तरह से अरेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर हमने मार्क किया, अगेन अगर हम इसको कंपास को उठा के आगे प्लेस कर देते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये जो पाथ ऑफ दैट फील्ड है वो शो हो जाता है, ठीक है। सो अगेन वी विल चेक दैट वन कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसको हम लाइन की हेल्प से शो कर रहे हैं, ये नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में इनवर्ड हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से साउथ में इनवर्ड, तो ये साउथ में इनवर्ड और नॉर्थ से क्या हो रही है? बाहर की तरफ जा रही है। दिस इज साउथवर्ड गोइंग, ओके। बट यू विल फाइंड ओवर देयर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनसाइड द मैग्नेट जो है ना वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या बन गया? ये एक क्लोज्ड लूप बन गया। कैसा बन गया? क्लोज लूप। मतलब कि आपने क्या किया? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से स्टार्ट होकर के दोबारा से नॉर्थ के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये मैग्नेट के बाहर भी होती है और मैग्नेट के अंदर भी होती है, ठीक है। बट ओवर हेयर वी विल चेक दैट वन कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो हमारे पास ओनली पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव के ऊपर टर्मिनेट हो जाती थी, ठीक है। तो उसका हमारे पास जो क्लोज लूप नहीं बनता था। तो ये कैसा होता था? हमारे पास डिसकंटिन्यूस थी और ओपन लूप इसमें बनते थे, ठीक है। सो ओवर हेयर इट इज़ सेड टू बी कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस जो
मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट व्हाट द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस वन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी उससे क्या इन्फॉर्मेशन थी, तो देयर वी सेड दैट जितनी क्लोजर लाइंस होंगी उतनी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो थी चार्ज के पास ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू दैट मिडल पार्ट। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर सेम इट इज़ विद दिस मैग्नेटिक दैट प्रॉपर्टीज़। तो जो हमारे पास इसमें भी क्या होगा, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर द फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होती है, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन और स्ट्रॉन्गर जो फील्ड है वो होती है। ठीक है, सो यू विल फाइंड ओवर हेयर एनालॉगी। एनालॉगी की अगर हम बात करें, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ पर किस पोल की तरह बिहेव कर रहा है, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन से पोल की तरह बिहेव करता है, वो एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। सो हेयर वी गेट दैट जो नॉर्थ पोल है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, और जो हमारे पास साउथ पोल है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेक्टर, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेक्टर। ठीक है, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है। ठीक है, जैसे हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो वैसे ही हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, हमारे पास जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो पोल्स के पास ज़्यादा होती है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इन चार्जेस के पास ज़्यादा होती थी। ठीक है, सो दैट्स ओवर हियर वी हैव टेकन दिस इज दैट एनालॉगी ऑफ दिस electrostatics with that magnetic field. Okay, in electrostatics we said over there, if the two charges that are separated by a small distance, okay, so how much is the force which is exerting between them? So this force is given by that coulomb's law, coulomb's law of electrostatics. Okay, so what it is known over there, coulomb's law of electrostatics, and that was F is equal to k product of the charge upon my square of the distance, and this k it was having its value 1 by 4 pi epsilon naught, or either 9 into 10 to the power of 9. Okay, now over here in case of magnetism, we are taking that there it is strength of the one pole, let it is qm1, while the strength of the second pole it is qm2, and if these two are separated by a small gap r, then again this coulomb's law of magnetism, now we are saying that that law which is given in magnetism, why that coulomb, it is that force between these two pole, it will be equal to k, and product of the charge, product of the pole strength, it is qm1 qm2 upon my square of the distance r square. See over there what thing is going on. Here they said that it is charge strength, and here they said that it is the pole strength, and that inversely to square of the distance, inversely to that square of the distance. Okay, here this k it was mu naught upon my 4 pi, or either numerical value it was 10 to the power minus of 7. Okay, so thus we are looking over there that if electrostatics we will prepare it, so that means magnetism will become easier for us. नाउ ओवर हेयर अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करनी है तो ये पैरेलल लाइन से शो की जाती है, दिस इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करनी है तो पैरेलल लाइन से शो करोगे, दिस इज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है उसको आप क्रॉस से शो करोगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड पेपर से बाहर की तरफ आ रही है उसको आप डॉट के साथ शो करते हो। ठीक है, नाउ ओवर हेयर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती थी, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, तो इन दैट केस क्या हो जाता था हमारे पास, ये इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म के लिए आप शो कर सकते थे। ठीक है,
तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बट रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करती, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास जो यूनिफॉर्म, जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, सो दिस यू कैन शो एज वेल इन द सेम वे, कि हमारे पास इस तरह से, बट दिस इज ओवर हेयर एज वेल, कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। रीजन वॉज देयर कि एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी द टू टेंजेंट एंड टू डायरेक्शन फॉर अ वेक्टर एट अ सेम प्लेस विल नॉट बी पॉसिबल। Okay, so that was related to this uniform and non-uniform magnetic field and electric field. Now if we talk about that, how this electric field line is different from magnetic field line, so there we will say this electric field line, these are discontinuous, while this magnetic field line, they were continuous. Okay, they were forming the closed loop and they were having those open loop. ये start होते थे और नेगेटिव के ऊपर एंड हो जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी कैन टॉक ओवर हेयर, दैट विद इन कंडक्टर, जो हमारे पास चार्ज कंडक्टर होता था, ठीक है, विद इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी हमारे पास, वो क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाती थी इनसाइड, जीरो। बट दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल नॉट बी जीरो इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ओवर देयर, दैट ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, देवर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो थी वो सिंगल चार्ज की आप शो कर सकते थे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज की होगी या फिर ये नेगेटिव चार्ज की शो की जा सकती है, ठीक है। बट ओवर देयर यूनिपोल वर नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यूनिपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते। So thus we can say that these are the difference between these two. Okay, so that's enough for my today's video and have a good time to every one of you. Thank you.